This conference will now be recorded. ओके सो हमें सबसे पहले गूगल क्रोम में जाना है। उसके बाद मैंने आपको कल भी एक लिंक दिया था। उसके बाद हमें गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे हमें सर्च करना है into PC। सो ये जो सबसे ऊपर लिंक आ रहा है इसे ओपन करना है। और हमारे यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप देखोगे तो राइट साइड में सर्च वेबसाइट, वेबसाइट के अंदर ही एक सर्च का ऑप्शन है। उसमें आपको टाइप करना है स्टैट एंड देन क्लिक ऑन गो। जैसे ही ये पेज लोड होगा उसके बाद स्टैट के 3 रिजल्ट्स आएंगे। फर्स्ट इज स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन, सेकंड इज सीमेंस एनएक्स, बट हमें सबसे फर्स्ट जो आ रहा है स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन, इस पे क्लिक करना एंड जैसे ही पेज लोड होगा उसके बाद ये ओवरव्यू दिया हुआ है स्टैट प्रो के बारे में, व्हाट आर इट्स फीचर एंड टेक्निकल सेटअप डिटेल्स। हमें नीचे जाना है एंड ये डाउनलोड नाउ का जो ऑप्शन आ रहा है इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे इस पे तो एक जिप जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप सबको वो एक्सट्रैक्ट करनी है और उसके बाद जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपको अपने लैपटॉप का जो एंटीवायरस है उसको डिसेबल करना है एंड सेटिंग के अंदर जाके आप एंटीवायरस में सर्च करोगे रियल टाइम, उसको भी आपको टर्न ऑफ करना है। ये आपको टर्न ऑफ इसलिए करना है सो डैट जो आपका क्रैक फोल्डर है एक्सट्रैक्ट होते टाइम वो ऑटोमेटिक डिलीट ना हो जाए। जब आप ये डिसेबल कर दोगे दोनों चीजें, इसके अंदर एक क्रैक फाइल आएगी। आपको उसको कैसे यूज करना है वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। Here is this video. So here it is. You have to turn off your internet after downloading the software. Otherwise, software will not be activated. And here it is written: turn off Window Defender protection or Avast antivirus before extraction in window time. The method is different. To turn off the Window Defender, you can search Defender in the start menu. Okay, so I'm going to play this video and you can easily understand the steps how to use the crack to install the software. So here you go. So it is again showing the same thing, that how you can
disable the thing. Here he is disabling real-time protection. You have to turn it off. After the file will be look like this. Here is the cracked folder in zip format, and here is the StatPro software, and you have to just right click on it and administrator. It will take time according to your PC. So after extracting, you have to click on the install button, and you have to accept all the terms and conditions of this license agreement, and then click on next button. So you have to press again the next button. So it is your wish if you want to type your name in username, or you can simply click on the next button. And here it is asking about the unit system. Sir, I have installed the StatPro software by Bentley. Is that fine? Yes, it is good, but from Bentley, I hope it is in trial version. So it's okay. We will continue in StatPro, but this tutorial is for the students who haven't downloaded it. So here it is asking about the units which you want to work in StatPro, either in metric unit or in English units. So you can use. So here, after installing, you have to click the finish button. So earlier we installed the Stat software, and here we have Stat Foundation V8i. So this software is also come along with StatPro for designing the foundation of the structure. So you have to do the same thing. You have to accept all the terms and conditions. And same process you have to repeat. So here you can see all the things have been installed successfully, but our installation process is not completed. So here we have the correct folder in zip format. You have to right click on it and click on the extract here, and after extracting you will get a bentley.lic.lib.dll file. You have to copy this file. If you don't disable your antivirus, then it will automatically delete from your PC. So make sure you have disabled your antivirus. So copy this file and we have to paste it, and the path for pasting it is you have to go to the C drive, and then here StatPro select series, double click it, and here you will see this type of folders like Measure, OpenStat, README, Section Wizard, Stat tutorials.
you have to first open the measure folder and just simply paste here and replace the file. Like it is asking copy and replace, don't copy, but keep both files. You have to do this thing, copy and replace. It just get copied and replaced the earlier file. So you have to do this thing again in section wizard folder. You have to copy and replace, and again you have to do that folder. In we have copied this file in three folders. Like first one is measure, second in section wizard, and third is stat. So we have to copy this file again in stat foundation, which we also installed. Let's see. So here, when you were opening the Stat Pro first time, you have to right click on it and play Run as Administrator. And here you can see you have successfully downloaded and cracked the software. In Help option, About Stat, you can see here it is installed and cracked. So this is all about installing and cracking the स्टेट प्रो. सो आप लोगों में जिन्होंने भी इसको अभी तक डाउनलोड नहीं किया, तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सब इंस्टॉल कर लो. बिकॉज अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करोगे तो दिस इज नॉट ए थ्योरी सब्जेक्ट जो आपको समझ आ जाएगा. यू हैव टू डू प्रैक्टिकल ऑन दिस, एंड आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ आएगा. सो आई डोंट थिंक कि 3-4 बच्चों से ज़्यादा किया है. सो मैं चाहता हूँ कि आप सब अभी साथ के साथ इसको एक बार इंस्टॉल कर लो, और आपको कोई इशू आता है तो मैं आपका के साथ सॉल्व कर दूँ. बिकॉज फ्रॉम योर फैकल्टी ऑफ कॉलेज मुझे ये रिस्पॉन्स मिला कि मेक श्योर कि हर बच्चे ने ये इंस्टॉल किया हो, तभी आप अपनी क्लास आगे बढ़ाना. सो मैं आपको आगे तभी पढ़ा पाऊंगा जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे. अदरवाइज आपको एक बारी के लिए समझ आ जाएगा, बट फिर जब आप बाद में करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा या आपके स्टेप्स मिस हो जाएंगे. सो अभी भी जितने ज्वाइंट हैं वो सभी अपनी एक बार नोट्स ओपन करें और इसको गेट इनटू पीसी में जाके इंस्टॉल करें. इज एम क्लियर टू एवरीवन? ये सब इंस्टॉल कर लो. मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ. आप जब ये इंस्टॉल कर लोगे आपको कोई दिक्कत मेरे से पूछ सकते हो.
आप में से किसी को कुछ पूछना है? हेलो। If you don't want to speak, then you can also write in the chat option. If you have any doubt, you can ask. सर कुछ दिख नहीं रहा। सर कुछ दिख नहीं रहा। एक्चुअली मैंने किया है, ताकि आप नेक्स्ट टैब ओपन करके गेट इनटू पीसी पे जाके स्टैट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सको। क्या सर फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा। मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की है सो डैट आप सब नेक्स्ट टैब ओपन करके स्टैट प्रो को डाउनलोड कर सको, जैसे मैंने आपको बताया है। सर हम स्टैट प्रो डाउनलोड कर रखे हैं अपने सिस्टम में। ओके, तो जो और बच्चे हैं एक बारी उनको करने देते हैं, उसके बाद हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। ओके सर, इसी प्लेटफॉर्म पे सर सीन होगा ना सर? क्या कह रहे हो? सर इसी प्लेटफॉर्म पे जो आप सिखाएंगे वो सीन होगा ना स्क्रीन पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगा। ओके सर। सो अगर डाउट है तो आप मेरे को दोबारा से पूछ सकते हो कौन सी वेबसाइट थी। आपको गूगल पे जाना है और वहाँ पे इनटू पीसी एंड वहाँ पे आपको सर्च करना है स्टैट और उसको डाउनलोड करना है। आप में से किसी का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। लाइक हियर आपको गेट इनटू पीसी पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है स्टैट। आप में से किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिस्टर अनुपम कुमार, आप म्यूट कर लोगे अपने माइक को? हेलो अनुपम कुमार।
आई होप आप सभी डाउनलोड कर रहे हो, और अगर आपको कोई भी इशू फेस होता है डाउनलोड करते टाइम तो यू कैन आस्क मी। सर ये सेशन कितना देर का है सर? ये सेशन 5 बजे तक है। आपने स्टैट डाउनलोड करा हुआ है? यस सर। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैट प्रो एंड ई टैब? देखो, मैंने अविनाश कुमार, मैंने कल भी बताया था, दोनों सेम चीज करते हैं, बट जो ई टैब है वो लिटिल बिट एडवांस है स्टैट प्रो से। लाइक स्टैट प्रो बहुत पहले का है, एंड ई टैब जो हम मेनली यूज करते हैं वो इंडस्ट्री में स्पेशली फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करते हैं। उससे हम स्टील स्ट्रक्चर इजीली डिजाइन कर सकते हैं, बट ई टैब में स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। और जो गवर्नमेंट ऑफिस हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर ड्राइंग की प्रूफ चेकिंग होती है, वो स्टैट प्रो की रिपोर्ट को वैलिडेट करते हैं या प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू ई टैब्स। बट फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर देखा जाए तो दोनों सेम काम करते हैं। ई टैब थोड़ा सा फास्ट एंड इजी है एज कंपेयर टू स्टैट। इज एम क्लियर टू यू अविनाश कुमार? ओके, सो अभी मुझे बस वो बच्चे बता दो जिन बच्चों ने स्टैट प्रो इंस्टॉल कर लिया है, सो डैट अगर आपने कर लिया तो मैं क्लास को आगे बढ़ा पाऊँ और हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर पाए जो आपको फ्यूचर में काम आने जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो। भोलू विश्वास, यस, वन, ओके। आशुतोष गणेश, ओके। सो ओके, क्लास स्टार्ट कर देंगे बोलो विश्वास, बट जो मुझे आपके कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले, मैंने तो कल ही क्लास स्टार्ट कर दी थी, बट कॉलेज की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि मेक श्योर के पास स्टैट प्रो हो, तभी आप अपनी क्लास आगे स्टार्ट करें। अभी भी आप अगर देखोगे तो मुझे सिर्फ 2 बच्चों ने रिप्लाई करा है, संजीव रंजन 3, अविनाश कुमार 4। सो आप अभी देख ही रहे हो, बोलो विश्वास अभी थोड़े से और बच्चे इंस्टॉल कर लें ताकि सबको समझ आए ठीक से, क्योंकि ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, इसको साथ के साथ प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट है ये। बट अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपके लिए
एक छोटा सा स्ट्रक्चर कर देता हूँ सो डैट आप वो भी प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो जिन जिन बच्चों ने स्टैट प्रो इंस्टॉल करा होगा तो सभी स्टैट प्रो को ओपन करो। ऐसे ये वेलकम स्क्रीन आएगी आपको जब आप स्टैट प्रो ओपन करोगे तो। एंड देन आपको जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे एंड आपको यहाँ पे स्पेस सिलेक्ट करना है क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनिट आपको सिलेक्ट करनी है मीटर एंड किलो न्यूटन एंड आपको करना है नेक्स्ट। एड बीम फिनिश। ओके, सो ऐसे आपकी स्टैट प्रो ओपन हो जाएगी। सो ये जो है ये हमारा ग्रिड सिस्टम है। अगर आपने कोई ड्राइंग देखी होगी तो जो भी कंस्ट्रक्शन चलती है वो ग्रिड लाइंस के हिसाब से ही चलती है। सर एक बार रिपीट कीजिएगा सर, हाँ जी पूछिए। एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा सर। ओके, तो देखिए जैसे ही हमने ये स्टार्ट किया तो हमारी ये ग्रिड आता है, इसको हम यूज करेंगे अपना मॉडल बनाने के लिए। या आपने कोई भी ड्राइंग देखी होगी कंस्ट्रक्शन वाली या आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए भी देखी होगी साइट पे, तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी ग्रिड्स बनी होती हैं साइट पे जिससे हमें कॉलम की लोकेशन पता चलती है और इसी ग्रिड लाइन के हिसाब से ही हमारी बिल्डिंग आगे। तो हम इस ग्रिड को अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा बढ़ानी है ग्रिड लाइंस, मान लो आपका स्पेस ज़्यादा है तो इसमें जो 1 मीटर की स्पेसिंग पे आती है, तो अगर आपको इसकी स्पेसिंग भी बढ़ानी है तो आप स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हो, कम करनी है तो कम भी कर सकते हो। इसको अगर आपको रेडियल करनी है तो रेडियल भी कर सकते हो और इरेगुलर करनी है तो इरेगुलर भी कर सकते हो। सो इन सारी चीज़ों को करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्नैप एंड नोड बीम पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे ये जो नोड का स्नैपिंग ऑप्शन है ये डिसेबल हो जाएगा। देखो डिसेबल हो गया। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो ये सेटअप जो हमारी जो ये ग्रिड सिस्टम दिखा रहा है ये एक्स वाई प्लेन में दिखा रहा है। ओके, तो इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है। आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। आपको 2 की गैपिंग देनी है, 3 की देनी है, 4 की देनी है, अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। तो जो डिफॉल्ट है वो 1 है इन एक्स डायरेक्शन, और अगर आपको वाई डायरेक्शन में भी चेंज करनी है तो भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो आप सब विजिबल हो रही है या ब्लर दिख रहा है? विजिबल हो रही है सर। ओके, तो आप जैसे ये वाई एक्सिस में देखोगे तो इसके अंदर भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सो यहाँ पे देखो एक्स वाई जी 3 प्लेन दिए हैं, यहाँ पे भी अगर आपको यहाँ पे एक्स की वजह जेड चूज करना है तो आप जेड भी चूज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपना मॉडल जो बना रहे हो वो किस प्लेन में बना रहे हो। देखो जैसे मैंने Z क्लिक करा तो ये अब ZY प्लेन हो गया और जो डिफॉल्ट होता है वो XZ प्लेन होता है। तो हम अभी इतना 3D में आगे नहीं जाते, हम जस्ट एक बार जैसे हमारा ये ग्रिड सिस्टम है तो अगर लेटेस्ट सपोज आपको 5 मीटर की बीम बनानी है तो आप यहाँ पे स्नैप नोड बीम पे क्लिक करो
0 दिखा रही है, ये हमारा ओरिजिन है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग भी है और आपको उसी को ही रेनोवेट करना है, तो आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के कोऑर्डिनेट्स उठा के भी आप आगे काम कर सकते हो। सो हमें मान लो 5 मीटर की जस्ट एक बीम बनानी है, तो हम एक बार इसको फ्रंट व्यू में, ये मैंने आपको कल आपको व्यूज बताए थे यहाँ पे, तो हम इसको प्लस जेड डायरेक्शन से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू है। तो हम ओरिजिन से 5 मीटर तक इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ पे स्नैप नोड बीम पे क्लिक कर देंगे, और अगर हम इसको काट देते हैं तो आप देखोगे हमारे पास ये 5 मीटर की बीम आ गई। और अगर आप यहाँ राइट साइड में देखोगे तो ये नोड लिखा हुआ है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2। तो जो हमारी पहली नोड है उसकी एक्स वाई जेड की डायमेंशन है 0, 0 और 0। और जो सेकंड नोड है ये वाली, इसकी एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर है, वाई और जेड में 0। और ये जो हमारी बीम बनी है, ये जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये डार्क ब्लैक कलर में, तो जो ये बीम 1 है इसका नोड ए और बी, मतलब 1 से लेके 2 तक ये बीम है। और जैसे ही मैं आपको कह रहा था, अब मान लो यहाँ पे ये हमारे सिलेक्ट कर्सर होते हैं, आप जैसे ही नोड कर्सर सिलेक्ट करोगे और जैसे ही इस नोड को क्लिक करोगे, आप देखे भी आओगे तो आपको नीचे हाईलाइट हो जाएगा #2। इट मीन्स ये हमारी नोड नंबर 2 है। और आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर से हाईलाइट होगी, ये हमारी नोड नंबर 2 है। सिमिलरली आप नोड नंबर 1 पे क्लिक करो, आप नोड नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा ये हाईलाइट होगी और तीनों की डायमेंशन 0, 0, 0 है। सो ये होगी हमारी फर्स्ट बी। ठीक है, अगर आपको एक छोटा सा, लाइक जैसे मैंने आपको कल बताया था, जिन जिन सर बच्चों एक बार ने और बीम बनाने का रिपीट कर दीजिए ना सर। ओके, बोलो विश्वास लाइसेंस मांग रहा है, क्या करें? ठीक है, मैं अभी बताता हूँ लाइसेंस मांग रहा है तो क्या करें, रिपीट करता हूँ। लाइक जैसे आप फाइल पे गए, आप इसके न्यू पे जाओ, नो स्पेस नेक्स्ट, तो जैसे आप यहाँ पे एड बीम पे जाके फिनिश करोगे तो आपको जो स्टैट में आएगी वो ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको कुछ भी नहीं करना, 5 मीटर की बीम बनानी है, ओरिजिन पे क्लिक करना है, उसके बाद 5 मीटर पे दोबारा क्लिक करना है और छोड़ देना बस। और यहाँ पे आके स्नैप नोड बीम का है, इसको आपको क्लिक कर देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो ये आपकी 5 मीटर की बीम आ गई है। दोबारा रिपीट करूं या समझ आ गया आपको? ड्रॉ करने के बाद स्नैप नोड पे क्लिक करना है। हाँ, स्नैप नोड पे क्लिक करना है और जो स्नैप नोड वाला डायल बॉक्स है उसको आपको क्लोज करना है। तो जिन बच्चों के पास है आप एक बारी वो करो। और भोलू विश्वास पूछ रहे हैं, लाइसेंस मांग रहा है, आपने एंटीवायरस ऑफ कर दिया था? ओके, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि आपको कैसे करना है। आप अभी एक बारी आपका नेट ऑन है, आप वीडियो देख लो, उसके बाद आप अपना नेट ऑफ करो और उसके बाद फिर क्रैक वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बता दूँ। लाइक जैसे आप जाओगे,
तो ये वीडियो है इसकी। जैसे आपने इसको डाउनलोड कर लिया, एंटीवायरस भी आपने ऑफ कर लिया, उसके बाद आपने इसको भी इंस्टॉल कर लिया। अब जो ये क्रैक को एक्सट्रैक्ट करने वाला पार्ट है ना, आप सिर्फ उस पे फोकस करो। आपने ये सब कर लिया होगा इंस्टॉल में, इसको फिनिश भी कर दिया। अब जैसे आप देख रहे हो, इसने क्रैक जो फाइल थी इसको एक्सट्रैक्ट किया और इसके अंदर एक फाइल है, लाइसेंस फाइल है ये, bentley.lic.dll। आपको इसको कॉपी करना है। क्या आपको ये फाइल दिख रही है? बोलो विश्वास। नो सर, तो नो आपने सर। एंटीवायरस ऑफ नहीं करा, इसलिए आपको नहीं दिख रही है, ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है। आपको जो एक्सट्रैक्ट दोबारा करना पड़ेगा और अपना नेट ऑफ करके इसको एंटीवायरस और रियल टाइम प्रोटेक्शन दोनों को ऑफ करके उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आपको ये फाइल यानी दिखेगी। इसे डाउनलोड करना पड़ेगा क्या सर? फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, बस आपको एक्सट्रैक्ट दोबारा करना पड़ेगा। ओके सर, आई विल ट्राई इट। अगर आपने डाउनलोड करा है ना, और अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हो मेरे साथ, मैं देख पाऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है। सर एक्चुअली हम मोबाइल से लॉगिन किए हुए हैं, लेकिन कंप्यूटर में देख रहे थे, तो मोबाइल में हमको लॉगिन कर रही है सर। ओके, तो आप मोबाइल का कैमरा ऑन करके लैपटॉप की स्क्रीन पे भी कर सकते हो अगर आपको ओ, इशू है तो। ओके सर, अब पहले ट्राई करते हैं सर। आप पहले ट्राई कर लो, अगर नहीं होता तो अभी चल रही है क्लास, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो और भी बच्चों ने डाउन का क्या रिस्पॉन्स है? डाउनलोड हो गया है, नहीं हुआ है, कोई दिक्कत आ रही है? एनी रिप्लाई आपकी तरफ से? हेलो? यस सर, हो गया। ओके, और किसी को डाउनलोड या इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत हो तो आप बता दो। जिनका हो गया वो, उन्होंने क्या वो बीम ड्रॉ कर ली जो मैंने आपको अभी बताई थी? ओके, बीम हो गया। ओके, तो चलो हम अपनी क्लास ही कंटिन्यू करते हैं। जो बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं उनको थोड़ा और टाइम दे देते हैं डाउनलोड करने के लिए, और हम थोड़ा बेसिक ही सीख स्टैट में आज। ओके, सो अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको कहा था कि आज की क्लास में हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट को रिलेट करेंगे, ताकि आप सब ये जान पाओ कि जो ये क्लास चल रही है इसमें
ऐसा कुछ इमेजिनरी थिंग्स नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल थिंग है जो आपकी बुक से रिलेट करती है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बारी पेपर पेन उठा लें, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम देने वाला हूं 2 मिनट की, और मैं चाहता हूं कि आप सभी वो सोल्व करें, और फिर मैं वही चीज स्टैट प्रो में सोल्व करके दिखाऊंगा, और आप इजिली दोनों चीजों को कंपेयर कर पाए, उन दोनों चीजों के रिजल्ट आप कंपेयर कर पाए। तो जो प्रॉब्लम है वो ये है, लेट अस से 4 मीटर की बीम है, और मैंने आपको कल इसका सेल्फ वेट निकालना बताया था कि निकालते हैं। जो इसकी डायमेंशन है वो है 230 mm बाई 250 mm। इस पे जो लाइव लोड है वो 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। इसकी लेंथ भी 4 मीटर है, और इस पे जो लाइव लोड है वो भी 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। ओके, और आपको जो निकालना है वो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। आप सभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, अभी तक आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस पढ़ लिया होगा, फ्रेम तक आगे होंगे। मैं आपका SA1 का एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, नॉर्मल जस्ट एक ये बीम है 4 मीटर की, आपको इस पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इसका जो लेंथ है वो है 4 मीटर, जो इसकी डायमेंशन है वो है 230 mm बाई 250 mm, और जो इस पे लाइव लोड है वो है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और डेड लोड सेल्फ वेट वो तो है ही। और ये दोनों जो एंड्स हैं ये पिन सपोर्टेड है। तो क्या आप मेरे को इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल के बता सकते हो? आप थोड़ा टाइम ले लो, बट आप इसको, ताकि जो रिजल्ट आएगा वो आप कंपेयर कर पाओ इस स्टैट प्रो में सेम चीज करके। सर नहीं हो रहा है, एक बार आप देख लीजिए तो स्क्रीन। तो ठीक है, आप कर दो शेयर मेरे साथ। सर डेड लोड कितना लेंगे सर? डेड लोड जो सेल्फ वेट है सिर्फ वही डेड लोड होगा। सर तो डेंसिटी होगा ना सर उसका, मतलब बीम का कुछ? वो M25 ग्रेड लेना है आपको। बोलो विश्वास, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, सिर्फ ब्लैक ब्लैक आ रहा था पहले। सर आप स्क्रीन शो कर रहे थे ना अपनी मुझे।
बोलो विश्वास, मुझे आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। बोलो विश्वास। ओके, इसमें ना अगर आप देखोगे तो ऑप्शन आता है स्क्रीन शेयरिंग का। सर डाउनलोड नहीं हो रहा है, मतलब कोई नोटिफिकेशन आ रही है सोनू कुमार डाउनलोड होने में, या नेटवर्क की वजह से नहीं हो रहा, या क्या इशू आ रहा है? बोलो विश्वास, मुझे सिर्फ ब्लैक ही दिख रही है, कुछ भी नहीं दिख रहा। ओके, मुझे दिख रही है। अब कुछ दिख रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, दिख अब कुछ दिख रहा है सर? हाँ, दिख रहा है। देखो सोनू कुमार, आपने लिखा है सर डाउनलोड नहीं हो रहा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको गूगल पे जाना है और वहां पे सिंपली गेट गेट इंटू INTO इंटू PC, बस ये लिखना है और आपको जो लिंक आएगा उसको ओपन करना है।
और उसके बाद ये जो सर्च का ऑप्शन है इसमें आपको टाइप करना है STAAD स्टैड, और उसके बाद आपको गो पे क्लिक करना है। देन आपको ये पेज ओपन होगा। इसके बाद आप जैसे ही ये जो सबसे ऊपर आ रहा है स्टैट प्रो कनेक्ट एडिशन, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो स्टैट प्रो V8i वर्जन है, इसको भी आप कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। जब आप ये कर लोगे तो जो नेक्स्ट पेज आप क्लिक करोगे तो वो आएगा ये, उसमें एक ये लिखा हुआ है, उसमें एक ये लिखा हुआ है हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। आप इसके अंदर पूरी वीडियो है, आप आराम से देखो। और जो क्रैक जिप फोल्डर है आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, बट जो आप ये एक्सट्रैक्ट करोगे उससे पहले आप मेक श्योर कि इंटरनेट डिसेबल हो और जो वायरस है और रियल टाइम प्रोटेक्शन है दोनों चीजें डिसेबल हो। आफ्टर extract have this video and you have to copy this license to the C directory, and then when you were about to start the first time, then you have to right click and run as administrator and you are ready to go. Okay, Mayur Maheshwari, 46.7 kilonewton per meter square bending moment and 46.7 kilonewton shear force SFT. Okay, kilonewton meter square unit. ओके, किसी और ने अगर सोल्व किया हो तो वो भी अपना आंसर लिख सकता है। बहुत इजी था। 4 मीटर की एक बीम है हमारी, उसका जो डायमेंशन है वो है 230 mm बाई 250 mm, एंड उस पर लाइव लोड है 4 किलोन्यूटन पर मीटर। हमें सिर्फ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। हेलो। काफी इजी क्वेश्चन है, SA1 का है। आपको सिर्फ SF शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बताना है मुझे। जो लोड हम लेंगे, एक तो 4 किलोन्यूटन पर मीटर जो बीम पे है लाइव लोड, प्लस जो डेड लोड होगा वो सेल्फ वेट ऑफ बीम होगा। हाँ, तो कुछ नहीं कर रहा। बावड़ा
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? यस। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ जिन जिन बच्चों ने कर लिया है वो सभी मेरे साथ इस प्रॉब्लम को स्टैट प्रो में सोल्व करते हैं, और आप साथ के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। आपको सबसे पहले जाना है फाइल पे, न्यू फाइल पे, और जैसे ही ये पेज ओपन हो जाता है आपको एक 4 मीटर की बीम बनानी है। लाइक 0 पे क्लिक करा, देन हम 4 मीटर तक गए, उसके बाद हमें स्नैप नोड बीम पे क्लिक करना है, एंड देन हमें इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना है। तो जैसे ही हम इसको क्लोज करते हैं तो मीटर की बीम आ गई है। तो अब जो जो हमें गिवन था क्वेश्चन में वो सारे हमारे इनपुट्स रहेंगे इस बीम के लिए। लाइक जैसे ये हमारी बीम है, ये मैंने आपको कल बताया था, ये हमारे वर्टिकल मेन्यूज हैं, ये हॉरिजॉन्टल मेन्यूज हैं, और ये मेन्यू के सब मेन्यू हैं। सेकंड लाइन मेन्यू, थर्ड लाइन सब मेन्यू, फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर्सर्स। तो अब जैसे ही हम ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं। हमने बीम ड्रॉ कर ली है, उसके बाद हम जाएंगे जनरल पे। जैसे ही हम जनरल पे जाते हैं उसके बाद हमारे पास सबसे पहले जो सब मेन्यू आता है वो आता है प्रॉपर्टी का। जैसे ही हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं उसके बाद अगर आप राइट साइड में देखोगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हो लिखा है सेक्शन। हमें सेक्शन डिफाइन करना है, तो हम सबसे पहले अपना सेक्शन डिफाइन करेंगे। ये जो डिफाइन टैब है इस पे क्लिक करेंगे तो अब ये आपसे पूछेगा कि आपको कि किस टाइप डिफाइन करना है। एज अ सर्कुलर हमें डायमेंशन पता है 230 mm बाई 250 mm, तो हम सिंपली रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, और आप देख सकते हो जो वाईडी डायमेंशन है वो हमारी डेप्थ है, और जो जीडी डायमेंशन है ये हमारी विड्थ है। तो हम ये डेप्थ है इसको लेते हैं 0.25 मीटर, मतलब 250 mm, और जो विड्थ है इसको हम लेते हैं 2, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और मटेरियल भी हमें गिवन है विच इज कंक्रीट। सो हम इसको ऐड कर देंगे और क्लोज कर देंगे। अब हमने जो प्रॉपर्टी थी वो अब इस प्रॉपर्टी को हमें इस बीम पे असाइन करना है। तो आप इस प्रॉपर्टी पे क्लिक करो, उसके बाद बीम सिलेक्ट करो, देन यहाँ पे ये आपके लिए पूछेगा असाइनमेंट मेथड। आप कैसे असाइन करना चाहोगे? असाइन टू सिलेक्टेड लिस्ट सिलेक्टेड बीम, जो बीम आपने सिलेक्ट किया है आप उस पर असाइन करना चाहोगे। असाइन टू व्यू, अगर आपके पास एक बीम ना होके पूरा स्ट्रक्चर होता उस स्ट्रक्चर पे पूरे व्यू पे आप असाइन करना चाहोगे? नहीं, हम सिर्फ सिलेक्टेड बीम पे असाइन करना चाहेंगे। और असाइन पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूछता है डू यू वांट टू प्रोसीड, हम कहेंगे यस। तो आप यहाँ पे देखोगे R1 शो हो रहा है, इट मीन्स हमारी जो रेक्टेंगल की रेफरेंस नंबर 1 की प्रॉपर्टी है वो इस बीम पे हमारी असाइन हो चुकी है। उसके बाद आप अगर सेकंड मेन्यू में आओगे तो हमारे पास है स्पेसिफिकेशन का ऑप्शन। तो हम इसको अभी असाइन नहीं करते, अभी जो हमें गिवन है हम सिर्फ वही इनपुट डालेंगे। उसके बाद आप नीचे देखोगे थर्ड ऑप्शन पे स्पोर्ट, तो आप वही राइट साइड में आओ, स्पोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। जिन जिन बच्चों के पास स्टैट प्रो है, क्या आप सबको ये समझ आ रहा है?
और मतलब ठीक से दिख रहा है? तो प्लीज एक बारी मेरे को बताओ ताकि मैं इसको कंटिन्यू रख सकूं। यस सर ओके, सर डायमेंशन सर के मेरा बाद जो आपने क्या किया? डायमेंशन तो एक एक करके बोलना। एक एक करके बोलने के लिए कहा था मैंने। सर डायमेंशन के बाद आपने जो डेप्थ और विड्थ लिया, उसके बाद आपने राइट हाँ साइड जी, में प्रॉपर्टीज पैलेट में क्या किया वो जानना था सर। ओके। हम प्रॉपर्टी में दोबारा जा रहे हैं। जैसे ही हम प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे राइट साइड में हमारा एक प्रॉपर्टी का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है अपने बीम की। सो यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक एडिट। आपका जो पहले से डिफाइन प्रॉपर्टी है उसको एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, या डिफाइन। उस डिलीट के नीचे ये डिफाइन। सो हम डिफाइन करना चाहते हैं नई प्रॉपर्टी को। आप इस पे क्लिक करो तो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो ये पूछेगा आपको लेफ्ट साइड में कि सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, कैसी प्रॉपर्टी आप डिफाइन करना चाहते हो। तो हमने सिलेक्ट किया रेक्टेंगुलर पे। तो उसके बाद ये आपको फिगर भी शो कर रहा है रेक्टेंगुलर सेक्शन की, और आपको बता भी रहा है कि जो इसके अंदर y है वो किस चीज को शो कर रहा है, और जो z है वो किस चीज को शो कर रहा है। तो जो y है वो हमारी डेप्थ को शो कर रहा है। तो जो हमारी डेप्थ थी वो थी 250 mm। तो हम इसको 250 mm इज इक्वल टू 0.25 इन मीटर्स। तो हमने 0.25, और जो हमारी दूसरी डायमेंशन थी वो थी 230 mm। तो हमने 0.23 इसको इनपुट दिया, क्योंकि 0.23 मीटर इज इक्वल टू 230 mm। सो हमने यहाँ पे इसको ऐड पे क्लिक कर दिया और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दिया। तो आप देखोगे दो प्रॉपर्टी डिफाइंड है। तो हम जो पहली वाली प्रॉपर्टी है इसको डिलीट कर देते हैं। हमने डिलीट कर दी। अब जो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी है, अब आप देखोगे बीम पे कुछ, जैसे ही आप प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करते हो उसके बाद बीम सिलेक्ट करते हो, तो ये उसी के नीचे आपको पूछ रहा है असाइनमेंट मेथड। तो इसमें लिखा हुआ है असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स। आपको इसको असाइन करना है जो आपने बीम सिलेक्ट करी है, एंड प्रेस यस। नाउ अब आप यू कैन सी यहाँ पे R2 लिखा हुआ है, मीन्स रेक्टेंगुलर ऑफ रेफरेंस नंबर 2 प्रॉपर्टी, जो इस बीम की प्रॉपर्टी हमने असाइन करी है और डिफाइन करी। तो ये प्रॉपर्टी वाला क्लियर हो गया आपको? तो वहाँ पे 1 लिखा है आपने? हाँ, यहाँ पे यस सर। तो ये मैंने नहीं लिखा, ये जस्ट बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसका ओके सर। कोई इफेक्ट नहीं है। तो सर मेरा जो डायमेंशन है वो फीट में आ रहा है, उसको कैसे चेंज करें मीटर में? देखो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो यस सर। वेलकम स्क्रीन में ये आपसे पूछते हैं कि आपको किस यूनिट्स में काम करना है, मीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, फुट में। तो आप वहीं से डिफाइन कर सकते तो सर पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कि हाँ ऐसे नहीं हो सकता। हो। ऐसे हो सकता है बट हम ऐसे प्रेफर नहीं करते, क्योंकि इसमें जो चांसेस ऑफ एरर आने के हैं वो बहुत ज्यादा है। तो ये ओके तो सर। जस्ट एक बीम है। आप जस्ट फाइल पे जाओ, न्यू, ओके सर। लाइक आप करोगे तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आपसे पूछेगा मीटर और फुट। आपने ओके शायद सर। फुट सिलेक्ट कर लिया होगा, या हाँ। इंस्टॉल करते टाइम आपने इंग्लिश यूनिट सिलेक्ट की होगी रेदर देन मेट्रिक यूनिट, इसलिए वो फुट ले रहा होगा। तो आप इसको ऐसे कर लेना। तो हमने इसको यहाँ पे प्रॉपर्टी को असाइन कर दिया। देन उसके बाद हम आते हैं अपने जो सब मेन्यू है हमारा सपोर्ट का।
तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब मेन्यू है सपोर्ट का, इस पे हम जाते हैं और जैसे ही आप सपोर्ट पे क्लिक करोगे राइट साइड में देखोगे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, सपोर्ट होस्ट स्ट्रक्चर। तो अभी आप इसमें देखोगे S1 नो सपोर्ट। जो S1 है वो नो सपोर्ट है, बट हमें क्रिएट करनी है सपोर्ट, सो हम इसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि फिक्स्ड है, तो इसमें ऑलरेडी पहले से मैं, तो इसके अंदर FX FY FZ MX MY MZ 6 की 6 फ्रीडम रिस्ट्रेन्ड है। तो इट मीन्स आपका सारा कुछ रिस्ट्रेन है। और आप जैसे ही पिन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे MX MY MZ रिस्ट्रेन नहीं है, FX रिस्ट्रेन है। तो आप इसको पिन सपोर्ट भी दे सकते हो, बट आप नॉर्मली देखोगे तो दोनों एंड फिक्स सपोर्ट नहीं होते हैं। हम नॉर्मली कॉन्टिन्यूस बीम में वन एंड फिक्स रखते हैं, अगर ये पिन रखते हैं तो हम इसको जस्ट फॉर रेफरेंस हम पिन सपोर्ट ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे S2 सपोर्ट क्रिएट हो चुकी है, सपोर्ट नंबर 2, और आपको यहाँ पे राइट साइड में छोटा सा लोगो भी दिख रहा होगा पिन सपोर्ट का। तो आप इस सपोर्ट पे क्लिक करो एंड आप यहाँ पे जो आपकी दो नोट्स हैं इसको सिलेक्ट करो। जैसे आपने एक नोट सिलेक्ट करी, आपको सेकंड भी सिलेक्ट करनी है तो आपको कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अब आपकी दोनों नोट सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो उसके बाद असाइन टू सिलेक्टेड नोट्स, ओके देन असाइन। अब आप देखोगे कि हमारी स्पोर्ट्स असाइन हो चुकी हैं। यहाँ तक स्पोर्ट वाला क्लियर है सबको या कुछ बताना? तो एक बार फिर कोई से भी रिपीट कर दीजिए सपोर्ट वाला। ओके, लाइक जैसे हम जनरल पे क्लिक करेंगे उसके सब मेन्यू में हमारे स्पोर्ट आएगा। अब जैसे ही स्पोर्ट पे क्लिक करोगे में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा स्पोर्ट के नाम से। आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है क्योंकि आप नई स्पोर्ट क्रिएट करने जा रहे हो। और अगर आपको पहले से कोई स्पोर्ट क्रिएट है उसको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो, बट फॉर स्टार्टिंग हम क्रिएट पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे बहुत सारी स्पोर्ट के ऑप्शंस मिलेंगे हमको। देन आपको पिंड स्पोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद उसको ऐड करना है। अब जैसे ही आप इस स्पोर्ट को ऐड कर लोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा स्पोर्ट नंबर 3, और जो फिर आपकी पहले वाली स्पोर्ट है आप इसको डिलीट कर सकते हो। और स्पोर्ट नंबर 3 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो बीम की दोनों नोड्स हैं, जो भी दोनों एंड्स हैं, अब वहाँ पे सपोर्ट दोगे। आप पहले नोड को सिलेक्ट करो, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करो और सेकंड नोड को सिलेक्ट करो एंड देन असाइन कर दो। दोनों नोड्स सिलेक्ट हैं, असाइन हो जाएंगी दोनों पे सपोर्ट। तो दोनों नोड पे सपोर्ट असाइन होगी। और आप जो ये नंबर पूछ रहे थे पिछली प्रॉपर्टी में, तो आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया होगा। जिस जिस पे भी ये असाइन होता है उसका नंबर यहाँ पे शो करता है। लाइक हमने दो नोड पे सिलेक्ट किया नंबर 1 और 2 पे, तो ये उसको यहाँ शो कर रहा है। और प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही बीम थी तो इसलिए उसने सिर्फ नंबर 1 ही शो किया। आपको क्लियर? हेलो, यस सर। सर क्लियर आपका हो जो गया एक्स आपको? और वाई का ओरिएंटेशन है वो अलग है और मेरा अलग है, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं एक्स वाई जेड का? ओके, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था आपको।
जो ग्रिड का ऑप्शन आता है सबसे स्टार्टिंग में, उसमें आपका कैसे ओरिएंटेशन आ रहा है, मतलब x की जगह, मतलब y की जगह z आ रहा है और z की जगह x आ रहा है। नहीं सर, y तो वर्टिकल ही है, बट जो x है आपका पूरा हॉरिजॉन्टल है। हाँ, यस ऐसे ऐसे। ऐसे दिख रहा है। ओके, मैंने स्टार्टिंग में इस जो व्यू है आपको बताया था, इस व्यू को चेंज किया था। जो सबसे लेफ्ट में व्यू फ्रॉम पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है, इस पे क्लिक किया था। तो आप अगर इस पे ऐसे क्लिक करोगे तो काम करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यस जो सर। ये वाला व्यू है, इस पे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है काम करना। तो आप ये वाला सिलेक्ट करो, आपको इजीली दिखेगा भी सही और काम भी इजीली हो पाएगा। यस। ठीक है, ओके। तो हम जनरल पे थे, हमने प्रॉपर्टी असाइन कर दी, हमने स्पोर्ट असाइन कर दी। अब जो हमारी बारी आती है, जो क्वेश्चन में हमें गिवन था लोड असाइन। लोड हमें क्वेश्चन में गिवन था लोड 4 किलो न्यूटन पर मीटर लाइव लोड, एंड जो डेड लोड हमें गिवन था वो हमारा था सेल्फ वेट, और कुछ उसके अलावा डेड लोड नहीं था। तो हम जैसे ही लोड एंड डेफिनेशन पे क्लिक करते हैं तो आप राइट साइड देखोगे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें लिखा हुआ है लोड एंड डेफिनेशन। इसके अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा डेफिनेशन। तो कुछ लोड्स होते हैं जिसको हमें पहले से ही डिफाइन करना होता है, ये वो सब लोड है, बट ये अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट यूज होते हैं। बट हमें यहाँ पे अभी सिर्फ डेड लोड एंड लाइव लोड ही लगाना है। तो हमें सिर्फ लोड केस डिटेल पे जाना है, एंड उसके बाद आप नीचे देखोगे तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, आपको जस्ट ऐड पे क्लिक करना है। तो ये अब आपसे पूछेगा कि आपको लोडिंग टाइप पूछे। ओके, पहले आप ये देखो, इसमें लेफ्ट साइड में ये है प्राइमरी लोड, उसके बाद है लोड जनरेशन, उसके बाद है डिफाइन कॉम्बिनेशन, उसके बाद है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगा टाइम टू टाइम, बट जो अभी हमारा प्राइमरी है वो है नंबर 1। और जो लोडिंग टाइप है हमारी, इसमें आपका पूछ रहा है लोडिंग टाइप आपकी कैसी रहेगी, तो हमारी रहेगी डेड लोड। सो हम डेड लोड पे क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है आपको कुछ टाइटल देना है। तो हमारी अलग अलग लोडिंग होती है, तो इट्स बेटर कि आप जोन सी लोडिंग है आप उसको वही नाम दो। जैसे हमने अब डेड लोड सिलेक्ट किया, तो इसको हम डेड लोड ही टाइप कर देते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ पे करते हैं इसको ऐड। और एक और जो हमें लोड लगाना है वो है लाइव लोड। आप देखोगे डेड के नीचे ही लाइव लोड आ रहा है, आप लाइव सिलेक्ट करो और उसका आप टाइटल दे दो लाइव लोड, और इसको भी आप ऐड कर दो और इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज कर दो, क्योंकि आपने दोनों लोड ऐड कर दिए। अब आपने डेड लोड भी ऐड कर दिया, लाइव लोड भी ऐड कर दिया, बट अब जो डेड लोड आप ऐड कर रहे हो उसकी आपने अभी वैल्यू ऐड नहीं करी कि आपका डेड लोड कितना है और उसका अमाउंट कितना है और किस टाइप का लोड है। डेड लोड भी अलग अलग टाइप का होता है, लाइक आपके कोई फ्लोर पे मशीन रखी हुई है या फ्लोर का वेट आपकी बीम पे जा रहा है, तो वो भी एक तरह से डेड लोड ही काउंट होगा। तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन था वो जो डेड लोड था वो सिर्फ सेल्फ वेट था, जो भी बीम का सेल्फ वेट था। तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये मैं आज भी रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर डायरेक्शन पूछ रहा है आपको कौन से डायरेक्शन में लगाना है, एक्स वाई और जी में। अगर आप वाई डायरेक्शन में लगा रहे हो तो जो ये फैक्टर है इसको आपको -1 से मल्टीप्लाई करना है। -1 आपको इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि जो लोड की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड से डाउनवर्ड होगी। आपने सेकंड ईयर में आई थिंक साइन कन्वेंशन पढ़ा होगा
तो आपको पता होगा लेफ्ट टू राइट कैसे लेते हैं, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव लेते हैं, अपवर्ड टू डाउनवर्ड नेगेटिव लेते हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड पॉजिटिव लेते हैं। जो भी साइन कन्वेंशन है हर किसी की अलग अलग होती है, आपने जो भी पढ़ी है, बट इसके अंदर हम जो अपवर्ड से डाउनवर्ड यूज करते हैं उसको नेगेटिव लेते हैं, और जो डाउनवर्ड से अपवर्ड यूज करते हैं वो पॉजिटिव होती है। सो वाई डायरेक्शन में हमें जो फैक्टर लगाना है वो लगाना है -1, और इसको आपको जस्ट ऐड करना और क्लोज करना। आपने डेड लोड डिफाइन कर दिया। अब इसमें आप देखोगे सेल्फ वेट वाई डायरेक्शन -1, आप इस लोड को सिलेक्ट करो एंड देन इस बीम पे असाइन कर दो एंड देन असाइन। तो ये जो लोड है ये आपका असाइन हो गया है इसके ऊपर। ये जो आगे आप लोगो देखोगे ये भी चेंज हो जाता है असाइन होने के बाद। उसके बाद हमारा है लाइव लोड, इसको हम ऐड करेंगे। अब ये पूछ रहे हैं आप टाइप का है। जो हमारा लाइव लोड था वो था 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इट मीन्स थ्रू आउट अवर बीम यूनिफॉर्म लोड है हमारा, और 4 किलो न्यूटन पर मीटर है। तो हम मेंबर लोड पे जाएंगे और इसके अंदर यूनिफॉर्म फोर्स आप देखोगे तो यूनिफॉर्म फोर्स है। इसके बाद ये पूछ रहा है जो फोर्स है वो कितना है आपका। तो हमारा अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो -4। अगर आप आगे तो इसमें ऑलरेडी है किलो न्यूटन पर मीटर। -4 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा लोड लगेगा बीम पे। इसको हमने ऐड कर दिया एंड क्लोज कर दिया। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे हमारा लोड शो हो रहा है। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे और बीम सिलेक्ट करोगे और इसको आपको असाइन कर देना है, आप देख भी पा रहे होगे लोड की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी ऊपर से नीचे। हमने 4 किलो न्यूटन ऐड किया तो इसलिए ये डायमेंशन इतनी है। अगर 40 करते तो थोड़ी और ज़्यादा हो जाती, या 1 2 करते तो थोड़ी और कम हो जाती। तो ये हमने लोड भी डिफाइन कर दिया। ओके, सो उसके बाद जो ये मटेरियल है हमने मटेरियल भी कंक्रीट यूज किया हुआ है, लाइक आपको इसमें दिख भी रहा होगा कंक्रीट। उसके बाद अगर आप जाओगे डिज़ाइन पोर्शन पे, अगर आपको डिज़ाइन करना है तो इसके बाद आपको ये मटेरियल पूछेगा, आपको कौन सा मटेरियल डिज़ाइन करना है। स्टील बीम है, कंक्रीट है, टिम्बर है, एल्यूमिनियम है। तो आपको कंक्रीट सिलेक्ट करना है इसमें। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, कंक्रीट का कोड कौन सा है डिज़ाइन करने के लिए। 456। ओके, और किसी को भी आंसर देना है, हमारा कंक्रीट का कोड कौन सा है। हेलो, किसी और को अगर का कोड कौन सा है। आप चैट पे लिख भी सकते हो 56 अगर आपको नहीं बोल। ओके, यस, हमारा जो कोड हमें सिलेक्ट करना है वो 456 सिलेक्ट करना है। सो आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग इंटरनेशनल कोड्स भी आ रहे हैं, बट जो हमें सिलेक्ट करना है वो है IS 456। तो हम जैसे ही इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमारा जो IS 456 है वो सिलेक्ट हो गया। उसके बाद ये डिज़ाइन के कुछ स्टेप्स हैं, कमांड्स, like if you have to design beams and design columns. Okay, design beam, add, close, design beam. ओके, आपको इतना नहीं जाना। अगर आप यहाँ पे कमांड्स के नीचे जो यहाँ पे देखोगे, इसके नीचे आपको एक स्टैट एडिटर का ऑप्शन दिखेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो आपको स्टैट प्रो एडिटर ओपन हो जाएगा।
इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। आप सबको स्टैट प्रो एडिटर दिख रहा है? यस सर। सर कहाँ था ये ओके। स्टैट प्रो एडिटर? आप जैसे ही कमांड के नीचे देखोगे ना, एक थोड़ा सा रेड कलर का लोगो होगा बॉक्स कमांड के जस्ट नीचे, ऊपर ही हॉरिजॉन्टल मेन्यू में एक कमांड है, फाइल, एडिट, व्यू, टूल, सिलेक्ट, ज्योमेट्री, कमांड्स। कमांड के जस्ट नीचे एक रेड कलर का लोगो है। मिल गया आपको? यस सर। ओके, आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका स्टैट एडिटर ओपन हो जाएगा। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। जो हमने अभी तक इसमें इनपुट मैनुअली करे हैं वो सारे इसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव होते जाते हैं एडिटर के अंदर। सो अगर आप देखोगे जो हमारी फर्स्ट, क्योंकि हमने स्पेस सिलेक्ट किया था, हम इसको प्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि हम 2 डायमेंशनल काम कर रहे हैं। तो आप इसको स्पेस की बजाय बैक स्पेस करके प्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे स्टार्ट जॉब इंफॉर्मेशन का जो आया था, हमने उसमें सिर्फ डेट ही डाली थी और कुछ नहीं डाला था, तो इसलिए हमारी जॉब इंफॉर्मेशन स्टार्ट हुई और एंड हो गई। उसके बाद 5th लाइन में हमारा आ रहा है इनपुट विड्थ। जो हम विड्थ, जो ये इनपुट वो 79 है। उसके बाद हमने जो यूनिट सेलेक्ट करी थी वो करी थी मीटर और किलो न्यूटन, तो ये वही ऑटोमेटिक लिखी हुई आ गई। उसके बाद आप देखोगे ज्वाइंट कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, तो जो ज्वाइंट नंबर 1 है उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0 0। कोऑर्डिनेट नंबर 2 है उसके कोऑर्डिनेट है 4 0 0। और जो ये मेंबर इंसिडेंस है ये हमारी बीम है। और उसके बाद जो हमने मटेरियल डिफाइन करा है वो कंक्रीट किया है, उसमें ई की वैल्यू, पॉइजन की वैल्यू एंड डेंसिटी हमें M25 दी हुई थी ग्रेड, तो इसने ऑटोमेटिकली 23 पॉइंट लिया, तो इसको हम चेंज करके 25 कर देते हैं। उसके बाद अल्फा डैम, टाइप ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ, FCU, इसमें 27,579 है। इसको भी आप चेंज करना चाहो तो 25,000 कर सकते हो। उसके बाद हमारी एंड डिफाइन मटेरियल, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी 250 बाई 30 mm, 230 mm की। उसके बाद जो कांस्टेंट थे वो है स्पोर्ट दिखा रहा है, ये 1 और 2 पे पिन है। उसके बाद लोड टाइप दिखा रहा है, डेड लोड एंड लाइव लोड। डेड लोड की डायरेक्शन कौन सी है, सेल्फ वेट है, और लाइव लोड की है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, -4 है। उसके बाद आप देखोगे स्टार्ट कंक्रीट डिजाइन, उसके नीचे कोड इंडियन है, डिजाइन बीम है, और ये एंड कंक्रीट डिजाइन और फिनिश। तो ये मेरे को आपको दिखाने का मतलब ये था कि अगर विद ड्यू टाइम अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाते हो तो आप डायरेक्ट स्टैट एडिटर के अंदर टाइप करके भी पूरा मॉडल बना सकते हो। तो जो ये हमने सारे स्टेप्स कर लिए, उसके बाद हम यहाँ पे एनालिसिस एंड प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद आप इसको ऐड कर दो, क्लोज कर दो। आप लेफ्ट साइड में देखोगे कि, सॉरी राइट साइड देखोगे तो परफॉर्म एनालिसिस पे टिक हो गया है। तो आप ऊपर ऊपर देखोगे तो इसको रन एनालाइज कर दो। आप Ctrl+F5 भी प्रेस कर सकते हो डायरेक्ट, और ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ही आपने क्लिक करा इसने एनालाइज किया आपके स्ट्रक्चर को, तो आप इसमें जाओ व्यू आउटपुट फाइल एंड डन। सो ये हमारी आउटपुट फाइल आ गई है। इसके अंदर ये 7 पेज की हमारी आउटपुट फाइल है। जस्ट एक बीम के लिए इसने 7 पेज की आउटपुट फाइल बनाई है।
इसके अंदर ये सब इनपुट था जो अभी मैंने आपको स्टैट एडिटर के अंदर दिखाया। इसने पहले ये सारा इनपुट दिखाया, उसके बाद इसने प्रॉब्लम स्टैटिक्स निकाले, सारा इनपुट था, डिग्री ऑफ फ्रीडम और लोड केस, जो एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर है हमारा, इसने वो भी कैलकुलेट किया, विच इज 5.75 किलो न्यूटन। उसके बाद लोडिंग 2i जो लाइव लोड थी, उसके इसने कैलकुलेशंस की अपनी बैक एंड पे, और ये इसने, आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना, कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे से पूछना। इसने सेक्शन वाइज पूरी रेनफोर्समेंट भी डिज़ाइन कर दी है, अगर आप देखोगे तो डिज़ाइन रिजल्ट इसने निकाले हैं। इसने टॉप रेनफोर्समेंट 0 रखी है और बॉटम रेनफोर्समेंट में सिर्फ स्केल दिया है। ओके, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, जो बीम होता है उसके टॉप पार्ट में कंप्रेशन होता है या टेंशन होता है? उसमें कंप्रेशन होता है या टेंशन होता है? कंप्रेशन। कंप्रेशन टॉप में होता है या बॉटम में? जो कंप्रेशन होता है कंप्रेशन ना, वो ऊपर होता है। राइट। इसलिए आप अगर देखोगे तो इसने जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की है वो सिर्फ बॉटम में की है, क्योंकि बॉटम में हमें टेंशन होता है और हम सबको पता है कि स्टील इज Concrete is weak गुड in इन tension. टेकिंग। यस, सो इसने ये समरी ऑफ रेनफोर्समेंट एरिया है जितना रिक्वायर्ड है। लाइक यू कैन सी, इसमें टॉप में कोई सरिया नहीं है, बट जो हमारा प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट है इसने फिर भी 10 डाया के दो सरिये प्रोवाइड कर, आप इसमें देख सकते हो कि 160 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ कर रहे हैं। तो हम एक बार इस आउटपुट फाइल को क्लोज करते हैं, और इस बीम पे अगर हम डबल क्लिक करते हैं अब, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमें सारा कुछ इस बीम के बारे में पता चल रहा है, लाइक लेंथ, इसकी डेप्थ, प्रॉपर्टी के बारे में, लोडिंग के बारे में। और ये आप देखोगे शेयर बेंडिंग, इसके अंदर ये थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये देखो, इसके अंदर आपको शेयर की वैल्यू भी मिलेगी और बेंडिंग की वैल्यू भी मिलेगी। लाइक अगर आप डेड लोड लेके चलते हो इन बेंडिंग ये द वाला डायलॉग डायरेक्शन, बॉक्स कहाँ से आया सर? आप इस बीम पे जस्ट डबल क्लिक कर दो और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। ये सिर्फ तभी ओपन होगा जब आपने स्ट्रक्चर को एनालाइज कर लिया। एक्चुअली ये पोस्ट प्रोसेसिंग का पार्ट है, जो यहाँ पे 4th नंबर अगर आपको दिख रहा है तो इसके अंदर आपको शेयर की वैल्यू और बेंडिंग की दोनों वैल्यू दिख जाएगी। बट बस इसके अंदर एक चीज है कि आपको लोड के सिलेक्ट कर, इसके अंदर डेड लोड और लाइव लोड। लाइव लोड की वजह से -8 है और डेड लोड की वजह से -2.88 है। और अगर आप इन दोनों का कंबाइन देखना चाहते हो तो आप कैसे देखोगे, विच इज इम्पोर्टेंट। लाइक हम वापस जाएंगे जनरल में। ओके, लोड कॉम्बिनेशन का मैं आपको कल बताऊंगा, पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको यहाँ तक समझ आ गया या कोई डाउट है आपका अभी तक जो मैंने बताया है, विच इज वेरी बेसिक। और कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया था कि 4 मीटर की एक बीम है, उस पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर का लाइव लोड है प्लस डेड लोड है, उसका मेरे को आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, विच इज वेरी इजी। और कल क्लास की स्टार्टिंग में होते ही मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। एंड मयूर महेश्वरी, आपने जो 46.7 दिया था
वो आंसर ठीक नहीं था। आप इसको दोबारा ट्राई करना। बट अगर आपका इस स्टैट प्रो में कोई डाउट है तो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हो, कुछ भी अगर डाउट है तो। और अगर कई बच्चे जो इंस्टॉल कर रहे थे साथ के साथ डाउनलोड कर रहे थे स्टैट प्रो को, तो उनका हो गया या उनको कुछ इशू आ रहा है या क्रैक नहीं दिख रहा या कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर हेलो आप सर। इस गेम में जितनी एक एक करके आप दोनों बोल सकते हो। कैन आई स्पीक फर्स्ट? ओके, सर आप जो भी इस 4 मीटर के बीम के लिए किए, तो सर जितना भी स्टेप किए उसका एक मतलब छोटा सा ओवरव्यू, मतलब स्टार्टिंग से कैसे कैसे किए। ओके, ठीक है, मैं आपको ये दे दूंगा ऐड में। इतने किसी आपके साथ में और किसी का कोई डाउट? सर कंक्रीट डिजाइन में जब सर कोड सिलेक्ट किए IS 456, उसके बाद सर उसका डिफाइन पैरामीटर कैसे किए सर वो बताइए तो। डिफाइन पैरामीटर्स एक्चुअली यस। हम सिर्फ यस सर। सी में डिजाइन कर रहे हैं, तो मैं कमांड का आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा। लाइक जैसे आप डिजाइन पे जाओगे, इसमें आपको पहले मटेरियल चूज करना है याद से, उसके बाद कोड सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डिफाइन पैरामीटर पे नहीं जाना है। यहाँ पे भी जाएंगे बट हम 3-4 क्लास के बाद जाएंगे यहाँ पे। बट इसके अंदर लाइक एफ सी आपको पता है, तो आपने एफ सी की वैल्यू डाल दी है। अगर आपको ध्यान हो तो इसको हमने स्टैट एडिटर के अंदर ही चेंज कर दिया था। आपको मैंने बताया था 27579 है, इसको हमने 25,000 कर दिया था स्टैट एडिटर में। तो ये भी जाएंगे हम, बट ये जो आपको डिफाइन पैरामीटर के साथ में कमांड्स का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर जाके हमने डिजाइन बीम की थी। अगर हमारे पास कॉलम होता, स्लैब होता, और ये जो टेक ऑफ का मतलब है, इसका मतलब है टोटल क्वांटिटी, हमने सिर्फ डिजाइन बीम ही करी थी। इस पे सिलेक्ट करके ओनली ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। लाइक यहाँ पे देखोगे कोड इंडियन डिजाइन बीम सिलेक्ट एंड कंप्लीट डिजाइन। तो आपको ये वाली चीज क्लियर होगी है? यस सर, थैंक यू। ओके, तो अमृता सिंह ने कहा था कि एक बारी ओवरव्यू दे दो, तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको बता देता हूँ थोड़ा जल्दी। लाइक जैसे आप फाइल पे गए, न्यू पे क्लिक करा, आप इसको प्लेन भी चूज कर सकते हो, स्पेस भी चूज कर सकते हो। मैंने प्लेन चूज कर लिया और आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है, देन नेक्स्ट, ऐड बीम, नेक्स्ट। लाइक जैसे ही आप करोगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। आपको जस्ट एक जी ओरिजिन पे क्लिक करना है, देन 4 मीटर पे क्लिक करना है, उसके बाद स्नैप नोड बीम, तो हमारी ये 4 मीटर की बीम बन गई। उसके बाद आपको जाना है जनरल पे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है। इसकी जो YD है वो हमने 25 डाली है, और जो ZD है 0.23 डाली है। ऐड करके क्लोज करना है। जो हमारी प्रॉपर्टी है इसको हमें और इसको असाइन कर देना है। उसके बाद हमें स्पोर्ट पे जाना है, स्पोर्ट क्रिएट करनी है, पिन स्पोर्ट पे जाना है और इसको ऐड कर देना है। और जैसे आप स्पोर्ट पे क्लिक करोगे तो हमें जो स्पोर्ट असाइन करनी है वो दोनों नोड्स पे करनी है। तो मेक श्योर कि आप एक सिलेक्ट करने के बाद दूसरी जब क्लिक करो तो कंट्रोल आपने प्रेस कर रखा, तभी आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको असाइन कर देना है, आप इसको असाइन कर देना है। उसके बाद एक सेकेंड आप
जैसे ही आप स्पोर्ट असाइन कर दोगे उसके बाद आपको जाना है लोड एंड डेफिनेशन पे, लोड केस डिटेल पे ऐड करना है। उसके बाद आपको प्राइमरी लोड में जाके पहले डेड लोड करना है असाइन, उसका आपको नाम दे देना है डेड लोड। उसके बाद लाइव लोड पे जाना है, उसका भी नाम दे देना है लाइव लोड, और उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। आप देखोगे कि दोनों लोड ऐड हो गए। उसके बाद आपको डेड लोड पे ऐड करना है, तो ये पूछ रहा है कि आपको सल्फेट ऐड करना है, तो y डायरेक्शन में -1 फैक्टर ऐड करना है और इसको क्लोज कर देना है। और सिमिलरली लाइव लोड में आपको मेंबर लोड पे जाना है यूनिफॉर्म फोर्स पे, और 4 था, तो मतलब 4 किलो न्यूटन पर मीटर था, और माइनस इसलिए लगा क्योंकि अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको ऐड करना है और क्लोज कर देना है। आप देखोगे कि दोनों लोड के आगे क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं, मतलब ये दोनों लोड असाइन नहीं है। आप लोड पे क्लिक करो, बीम पे क्लिक करो और इसको असाइन कर दो दोनों लोड को सिमिलरली। तो आप देखोगे तो दोनों लोड असाइन हो गए, स्पोर्ट हो गए, प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद आपको डिज़ाइन पे नहीं भी जाना तो भी कोई बात नहीं, अगर आप डिज़ाइन पे नहीं जाओगे तो आपको रेनफोर्समेंट डिटेल नहीं मिलेगी, बट शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको ऑल करना है एनालिसिस एंड प्रिंट पे जाके, इसको ऐड करना है और क्लोज करना है। और आप ऊपर देखोगे तो एनालाइज का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको एनालाइज कर देना है। तो ये आपकी आउटपुट फाइल आ गई। इसमें आप देखोगे 0 एरर, 0 वार्निंग, 0 नोट्स। इसको डन कर देना है और ये आपकी आउटपुट फाइल आई है 6 पेजेस की। बिकॉज इसमें डिज़ाइन नहीं है क्योंकि हमने डिज़ाइन नहीं किया रेनफोर्समेंट का, बट इसके अंदर आपको, इसको आप क्लोज कर देते हैं, बट इसके अंदर आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। आप जैसे इस पे डबल क्लिक करोगे तो शेयर और बेंडिंग ओपन होगा। लाइक इसमें जो शो कर रहा है 2.71 डेड लोड की वजह से, और लाइव लोड सिलेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से -8। ओके, सो ये एक बार इस सारा ओवरव्यू था, थोड़ा फास्ट हो गया। आई होप कि आप सबको समझ आ गया हो। तो आप सबको ये चीज़ क्लियर है, या है डाउट तो मैं बता सकता हूँ दोबारा आपको। हेलो, क्लियर है सर? ओके, और किसी को कुछ भी डाउट हो तो वो भी पूछ सकता है। ओके, तो आई होप कि आप सबको आज की क्लास का समझ आ गया होगा सारा। ओके, मेरे को बस आप एक चीज़ और बता दो, जो जो एट प्रेजेंट क्लास में प्रेजेंट हो, आप सबके पास स्टैट है, या आप में से भी कोई ऐसा है जिसके पास स्टैट प्रो नहीं है? आप मुझे चैट पे लिख सकती हो अगर आपके पास नहीं है तो। शिव आनंद कुमार, आपके पास स्टैट प्रो है? शिवम कुमार गिरी, संजीव रंजन, आपके पास है स्टैट प्रो? ओके, शिवम कुमार गिरी आपके पास नहीं है।
तो आप स्टार्टिंग से हो क्लास में? मैंने आपको पूरा प्रोसीजर बताया था कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको स्टिल, मैं दोबारा बता देता हूँ और लिंक दे देता हूँ, आप इसको यूज कर लो डाउनलोड करने के लिए। लाइक ये वेबसाइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और एक और मैंने आपको लिंक भेजा है, उसमें वीडियो है कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं। अब इट्स अप टू यू, बिकॉज आप जितनी जल्दी इंस्टॉल कर लोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। और बाकी जो बच्चे अभी क्लास में प्रेजेंट हैं, आई होप आप सारे इस क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करोगे और कल स्टार्टिंग में मेरे को इसका आंसर बता दोगे, shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का। ओके गाइस, हैव ए ग्रेट डे। किसी का कोई डाउट है, और सर शुड आई एंड द क्लास? इस क्वेश्चन को स्टैट पे सॉल्व करना है। आपको मैनुअली सोल्व करना है, जस्ट इसका आंसर निकालना है, और कल हम क्लास में इसको रिलेट कर देंगे स्टैट प्रो पे सेम प्रॉब्लम सोल्व करके, ताकि आपके माइंड में भी इजीली ये हो जाए कि ये कुछ अलग नहीं है, ये हमारा जस्ट जो हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं बुक में से वही इसके अंदर हो रहा है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? आई होप आई एम क्लियर। Okay guys, see you in the next class.